Hello, good afternoon, doctors. Welcome to one more exciting session of Guruji Ke Saath Guruvar 2.0. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning, which we started on 10th of April 2025 under the mentorship of our Guruji, Dr. Liaquat Namole sir. So, friends, I would like to share a few words about PHF first of all. So PHF, that is Promisulon Homeopathic Forum, which was founded by Dr. Liaquat sir with the vision to educate homeopaths and to transform GPs towards homeopathy. And he is successful to convert more than 2000 GPs towards homeopathy. We organize various activities regularly so that we can reach to maximum homeopaths who are not able to practice homeopathy due to lack of proper guidance. Ignited Minds by PHF is the pioneer group for free learning of homeopathy, which was first started on WhatsApp and now it is on Telegram. And about 3000 doctors learning daily on Telegram group. Recently, we completed free webinar series of 100 lectures on Zoom, which are available on our YouTube channel, that is Ignited Minds by PHF. And through the visionary mind of Dr. Liaquat sir, we are sharing a new series of lectures, that is what women want, to explore women's heart, emotions, and needs to be able to heal her. So we have already completed four parts and four emotions we have explored till now. And today we are going to deal with one more emotion, woman's emotion, with a very senior homeopath, Dr. Dilip Jani sir. So here is a little information about sir. Sir has passed his LCEH from CMPH Medical College, Mumbai, and sir has also done CCMP in 2017 from Solapur. And sir was practicing general practice for 20 years, and then he converted to homeopathy. Uh, he come to know about Saigal method, and he is following Saigal system since 2011 to 12. So let us learn with sir. Over to you, sir. Welcome, sir. Yes, Thank you, yes, sir. Dilip Bhai. Friends, Dilip Thank Bhai you, is sir. very close friend of mine. He's a brother to me, and he was a general practitioner, mind you. Dilip Bhai and I have met two, three times in seminars in HHF in Bombay. Uh, he is a fun, wonderful person, and I tell you, this is for the general practitioners. दोस्तों, जो एक्सपीरियंस आपने जनरल प्रैक्टिस में किया है एज अ फैमिली फिजिशियन, वो बहुत काम आता है होम्योपैथी के अंदर। सो जिन जिन के मन में अगर डर है कि हम जीपी से होम्योपैथी कैसे करेंगे, वो आप निकाल दो। मेरे को अब पता है, नासिर भी एक अपना कोपरगांव का बच्चा है, वो भी जीपी करता था। पगारे है, डॉक्टर पगारे करके, वो भी वो जीपी करता था। ठीक है, तो ये सारे जीपी से होम्योपैथी की तरफ माशाल्लाह से एकदम सीजन बैटिंग कर रहे हैं। तो प्लीज रिमेम्बर, मतलब टेस्ट मैन, टेस्ट प्लेयर कैन नॉट प्ले 2020, ऐसा नहीं है। ओनली थिंग इज दैट यू शुड नो बैटिंग, दैट्स इट। तो आप जीपी के अंदर आप बैटिंग कर रहे हो, आप प्लीज ये समझ लो कि ऐसा कुछ नहीं कि आपको जीपी या फिर होम्योपैथी कैसे करोगे, बहुत इजी जाएगा। बिकॉज द माइंड मेथड दैट वी प्रैक्टिस इज नथिंग बट व्हाट वी टॉक, व्हाट वी हियर, वेरी कैजुअल जो अपनी होती है वो होता है हमारा ऐसा। हाँ, कैसे है जी, बोलिए आपका नाम क्या है, उम्र क्या है, और कौन, वो ऐसा नहीं होता हमारा। वी आर वेरी कैजुअली, इट्स वी अपीयर वेरी कैजुअल, but we are very serious inside. Just like general practitioners are also, they also appear very casual. बेचारों को वो क्रेडिट नहीं मिलता है कि वो इतनी मुश्किल मुश्किल बीमारियां 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए फीस लेके करते हैं जीपीस बेचारे। उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता, दे आर नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड। अभी तो अब देख लो कि उनके पीछे पड़े हैं कि सीसीएमपी मत करो, सीसीएमपी को ये नहीं वो नहीं है, मतलब यू आर नॉट अप्रिशिएटेड। तो आई एम, दिस इज एन अपील, वर्ल्ड वाइड अपील। Forget about India. This is a global appeal to all the GPs, those who are practicing from homeopathy to GP or from Ayurveda to GP or from Unani to GP. We are here. हमारी पूरी टीम है आपके साथ में।
हम लोग आपको एजुकेट करेंगे, आपको होम्योपैथ बनाएंगे ही बनाएंगे, माँ जोड़ के एकदम प्यार से, एकदम प्रेम से आपको दे देंगे, इतना एक्सपर्ट बना देंगे साल भर में। नन ऑफ माई स्टूडेंट इज अर्निंग लेस देन 1 लाख रुपीज a month. None of my student, I'm telling you. और वो भी शान से, with dignity. So through this forum, again, I would like to appeal. I like to appeal everybody. बॉम्बे में दिलीप भाई is there. बॉम्बे में भी हमारे इतने डॉक्टर्स, all over we have doctors, all over the world we have doctors. इंडिया में तो there is no single district where we don't have student. So all the GPs who want to practice homeopathy, please come to us. We will help you. We will train you. Okay, forget about money. We are not practicing. We are not doing it for money. पैसा बहुत है भगवान का दिया. हमको blessings चाहिए और बस आप लोग चाहिए. ठीक है, तो today's lecture is also like that. और for homeopaths तो of course we are there. वो तो आप लोग तो है सताने वाले, है ना? तो और तो दिलीप भाई, आप दिलीप भाई के प्रिस्क्रिप्शन देखो. मतलब आई रिमेम्बर दिलीप भाई प्रिस्क्राइबिंग टैरेंटुला फॉर अ चाइल्ड ऑफ कॉन्स्टिपेशन. हम लोग टैरेंटुला सिर्फ माइंड 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 पे देते हैं, नाटक करने वाले को देते हैं, फेनिंग वाले को देते हैं. जेन्युइन केसेस आल्सो गेट सॉल्व विद टैरेंटुला. आई रिमेंबर हिज केस वेरी वेल, कि when he had prescribed tarantula for a child who had constipation, है ना दिलीप भाई? I remember that case very well. So you take advantage of his lecture. Watch this lecture on YouTube also later. Over to you, दिलीप भाई. I'm there till end, don't worry. अभी आज का Yeah. हमारा सब्जेक्ट तो what woman wants है, तो इसके अंदर औरत को एक एक फीमेल क्या चाहती है वो मैं बताऊंगा, दिलीप भाई भी बताएंगे ऑफ कोर्स, और मैं भी बताऊंगा कि हम लोग वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द वुमेन्स हार्ट. As we have told in the flyer also, we are trying to explore the woman's heart, woman's pain, woman's plight, so that we unveil the secret of the world as to how to reach a woman's heart as far as healing is concerned. Yes, over to you, Dilip bhai. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Mansi ma'am. Thank you, Pranita ma'am. So before starting the session, we should gratitude our masters. So gratitude to our master, Dr. Haniman sir, जो डॉक्टर एवल सेगल सर, डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर संजय सेगल सर, डॉक्टर महेश सर, and gratitude to my mentor, Dr. Damle sir, Dr. Arsad sir in Mumbai, Dr. Sandeep sir, then Dr. Manoj sir, Dr. Liaquat sir. So today's session means today's topic is what women want. So I have collected 2 or 3 cases from my this thing OPD. I will share those cases, or we will try to understand from those cases ki, what women want means regarding today's topic. Screen is visible? Yes, sir. Yes, Dilip bhai. Yeah. Full screen कर दो खाली उसको. Thank you, sir. ये जो केस है ना, इट इज अराउंड 2 years ओल्ड. 22 का कुछ केस है एंड 22 एंड में ये केस मेरे पास आया था. तो दिस इज अराउंड 40-year-old लेडी. सी वॉज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन सिंस मेनी ईयर्स. और मतलब जब भी मेरे पास आती थी पैरासीटामोल या दूसरा कुछ भी मेडिसिन लेके जाने की, तो मैंने बोला था कि देखो ये तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं है, यू कम वंस तो आपका केस टेकिंग करता हूँ और विल कम टू मेडिसिन, तो आपको मैं अच्छी से मेडिसिन दे सकता हूँ. देन वंस सी केम, तो मैंने डायरेक्टली पूछा था उनको कि भाई आपका हेडेक क्या है. उसके पहले का जो स्टोरी था वो मेरे मतलब आई नो दिस फैमिली सिंस मेनी ईयर्स. तो ये मेरे को पता था कि सी वॉज स्टेइंग विद द हस्बैंड और एक डॉटर थी, सी वॉज 20-year-old, और 2 उनके बेटे थे. एक जो बेटा था 18-year-old, सेकेंड वॉज 10-year-old. तो बताइए कि 4 साल से मेरे को सर में दर्द हो रहा है. फिर मैंने पूछा जब भी कि आपका सर का दर्द कौन है आपके फैमिली में. तो अभी ये 3 जन थे, बच्चे लोग, हस्बैंड और वाइफ, इतने 5 जन ही रहते थे साथ में. तो सीधा उन्होंने हस्बैंड का नाम लिया और फिर बोले कि घर पे तू मैं होते रहता है आदमी से, घर पे पैसा नहीं देना. और जो आदमी है वो लेडीज सैंडल बनाने का जॉब करता था. एक मतलब जो फैक्ट्री रहती है सैंडल्स की, शूज की, उसमें ये काम करता था. फिर बोलते मेरे को घर पे अगर हिसाब दिए
पैसा दिए तो भी हिसाब किताब पूछने लगता था और बोलता था थोड़ा खर्च कम करो। वही बातें घर पे चलते रहती है। और देन सी वो स्माइलिंग। फिर मैंने पूछा मारपीट भी होती है क्या? तो बोला हाँ, मारपीट तो ज्यादा करके होती है। ये सब जो क्वेश्चन है ना, हम लोग वही वही पेशेंट को पूछ सकते हैं कि जो पेशेंट अपने नोन है। अगर डायरेक्टली कोई पेशेंट को पूछा तो कभी प्रॉब्लम हो जाता है, और वो भी फीमेल पेशेंट। तो बोले मारपीट तो ज्यादा करके होती है, बच्चे लोग देखकर भाग जाते हैं। हुआ तो भी छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत मारते हैं। 2-3 टाइम तो मेरी बेटी ने बचा है। और ये क्या करती थी, ये भी सामने मतलब रिवोल्ट करती थी, ये शांत नहीं बैठती थी। फिर मैंने पूछा अपने माँ बाप को क्यों नहीं बोलते? तो बोला कि घर में बोल के क्या करेंगे? अभी तो 22 साल हो गए, मतलब उस 40 ईयर है, और मैरिड होके 22 साल हो गया, मतलब 18 ईयर्स में उनका शादी हो गया था। अपने अपने में सब लोग उलझे हैं, हमारे पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। मतलब उनके ब्रदर सिस्टर्स पेरेंट्स सब लोग अपने अपने में उलझे हैं, हमारे पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। हम लोग 8 बहनें हैं और 3 भाई हैं। स्टार्टिंग में घर पर बोली थी, लेकिन अब हमेशा का हो गया है। महीने में 1-2 बार होना ही है, मारपीट लड़ाई झगड़ा। अभी एक तो हूँ नहीं, बच्चे भी है, मतलब वो अकेली तो अभी नहीं है। अगर माँ बाप के पेरेंट के घर पे जाएगी तो भी बच्चे को लेके जाना पड़ेगा। मैं अकेली तो नहीं हूँ, बच्चे भी है। माँ बाप, और तो माँ बाप कैसे बिठाते घर पे? कभी बोलने भी नहीं आए कि क्यों इतना लड़ते हो, मतलब मेरी बेटी को क्यों मारते हो इतना। माँ बाप एक भी टाइम मतलब घर पे नहीं आए, इतना टाइम बोल के भी 22 साल में एक भी बार घर पे नहीं आए। यही सब दिमाग में घूमते रहता है, कब तक चलेगा ऐसा? फिर मैंने पूछा हस्बैंड का स्वभाव कैसा है? तो बोला घर में कोई लेना देना नहीं है, घर पे आए, खाना पीना खाए और सो गए। इतना साल निकाल दिया। फिर बोलते एक औरत को और क्या चाहिए? हमारा हस्बैंड घर पर आएगा, कुछ बनाए, कुछ अच्छा लगे, मतलब कुछ खाना पकाए तो अच्छा लगे, तारीफ करे, इसमें ऐसी बात ही नहीं है। और कोई तारीफ करे भी ना तो ये चिढ़ जाते हैं। फिर मैंने पूछा आपके शौक क्या है? बोला मेरे को तो शौक होता है, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बाहर घूमना, शॉपिंग में जाना, ये सब। बोला लेकिन उनको ऐसा कुछ भी नहीं है, घर पे आके मुस्कुराते भी नहीं है, मुस्कुराना भी नहीं। तो माइंड में क्या आता है कि भाई तुम घर पे आओ तो कुछ पूछो खाचो बातचीत करो, मतलब घर में कुछ व्यवहार करो। ये कुछ भी नहीं आएगा, खाना पीना खाया सो गया, किसी से कुछ बातचीत नहीं, वाइफ से भी कुछ बातचीत नहीं, बच्चे लोग से भी कुछ बातचीत नहीं, क्या है कैसा है कुछ भी नहीं। फिर बोलता बाहर भी साथ में नहीं लेके जाएंगे, बाहर जाएंगे तो भी वो दोस्त के साथ में घूमने जाते थे, अकेले जाते थे, कभी भी वाइफ को नहीं लेके जाते थे, कभी घुमाने फिराने नहीं लेके। उनको कुछ लगा तो अकेले घूम के चले आते हैं। वही सब सोच सोच कर तबीयत खराब होती है। तो यहाँ पे मैंने मेडिसिन दिया था, लेकिन ये मेडिसिन काम नहीं करी। फिर आगे मैंने पूछा था कि झगड़ा होता क्या होता है आगे? तो बोला झगड़ा होता है तो पाँव पकड़ के खींच लेते थे। सर पे भी ऐसा लगा था उसको। इसने बताया ना कि मेरी बेटी कभी मेरे को बचाती है। मैंने आपको बताई नहीं, क्या क्या याद करके बताऊं? मतलब ऐसा तो बहुत सारी कहानी, कितनी कितनी याद करके बताऊं? फिर बोलती है किसी और का चक्कर था, मतलब हस्बैंड वॉज इन्वॉल्व इन सम अदर वुमन, कोई दूसरी वुमन थी उसके साथ में भी, सी वॉज इन्वॉल्व, ही वॉज इन्वॉल्व। फिर बोले कैसे बताऊं माँ बाप को, बहन लोग भी छोटे छोटे हैं, एक बार तो घर से चले गए थे, शुरू से तकलीफ उठाई, लेकिन बोलूं किसको बोलूं? इसको लेकर मारतोड़ होता है। सही बोले तो सही बोले तो बहुत तकलीफ उठाई। और बाप को तो ऐसी कुछ बात बोल नहीं सकते, माँ को बोल के क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होता है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला फिर जाने दो, जिंदगी निकालना है अपने को। मार तोड़ लड़ाई झगड़ा ये सब मतलब उसकी लाइफ में चलते ही रहता था, चलते ही रहता था। तो यहाँ पे भी मैंने मेडिसिन दिया था, कार्सिनोस, पहले इग्नेशिया दिया था, माइल्डनेस, बेयर द सफरिंग, ये सब लेके। फिर कार्सिनोसिन दिया,
मतलब 2-3 मेडिसिन तो मेरी हो चुकी थी, बट वहां पे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला था। तो ये केस था, ये केस, और दूसरा एक केस के थ्रू हम समझेंगे कि मतलब वुमन को क्या चाहिए। जैसा इसने भी बताई, देखो कि घर पे आए तो मैंने जो खाना पीना बनाया अप्रिसिएट करे, कुछ बातचीत करे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पेशेंट हमेशा पैसे वाला ही होना चाहिए, सिर्फ पैसा ही चाहिए जरूरी नहीं, बट सी वांटेड अप्रिसिएशन। जो भी काम किया उसको अप्रिसिएशन चाहिए। प्लस बाहर अगर थोड़ा घुमाने लेके गए, बच्चे लोग से बातचीत किया, ये सब भी उसको चाहिए था, बट सी वॉज नॉट गेटिंग। उल्टा सी वॉज बिटन बाय द हस्बैंड, और वो भी बच्चे लोग के सामने। ठीक है, तो anybody will tell the analysis or any rubric or medicine whatever comes in the mind, बाद में हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। Anybody wants to share? हेलो। Dilip सेपिया bhai, लिखा है somebody सर। says sepia. सेपिया। या Somebody सिपिया, says और sepia. ओके। सिपिया कैसे, मतलब व्हाट इज द थॉट प्रोसेस या व्हाट इज द रूब्रिक्स? Wait, Dr. Asture. Dr. Anvay Asture said sepia. Wants appreciation. My first सर prescription was sepia, second was ignatia, and third was carcinosin. सर नमस्ते, मैं बोलूं क्या सर? या नमस्ते, बोलिए सर। सर इसमें एक तो एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, एलिमेंट फ्रॉम क्वारलिंग, एलिमेंट फ्रॉम मार्टिफिकेशन और डेलूजन एप्रिसिएशन, सर ये सब रुब्रिक लेते हैं। तो मेरी जो रेमेडी आती है वो ट्राइटिकम वुल्गेरिस आती है, सिम्फाइटम और एक नाइट्रम म्यूर आती है। बाकी और सोचते हैं सर। थैंक यू सर। राइट सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। हेलो। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते, गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते सर सर। एक ही रूब्रिक मैंने सोचा है, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज बीइंग फिजिकली, राइट। और वो डिपेंडेंट है हस्बैंड के ऊपर, तो राइट, लाइसिनम लगता है सर मुझे। बराबर, बट ये सिंगल रेमेडी रूब्रिक है ना सर? यस सर, यस सर। बहुत अच्छा है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो। हेलो सर। या, हेलो। या, बोलिए ना मैम। हाँ, मुझे यहाँ पर एप्रिसिएशन के साथ साथ ना, मुझे थोड़ा इंटीमेसी भी चाहिए हस्बैंड के साथ। तो मुझे थोड़ा सर पैसरडी का भी एक थॉट आया मन में। थैंक यू राइट, सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या क्या रेमेडी बोला इन्होंने? पेसर डोमेस्टिकस। अच्छा, very good. और 2 मिनट वेट करते हैं, और कोई बोलेंगे? हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। Yes, doctor, yes. बोलिए ना मैम, आवाज नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। सर इसमें केस सुनने के बाद एक ये भी लगा कि एक्सेप्ट रियलिटी वाला फील भी है कि भाई जैसे मायके में भी अब कुछ नहीं बोल सकते, बच्चे भी बड़े हो गए,
और वो एक्सेप्ट भी करी कि चलो ठीक है जो हो रहा है वो ठीक है, ये वाला फील भी आया। राइट सर, यस। क्या मेडिसिन आप सोच सकते हैं? सर मेडिसिन तो एग्जैक्ट नहीं, पर अब रूब्रिक जो दो तीन लिए थे, जैसे केयरफुल ऑफ रिलेटिव या डिल्यूजन एप्रिसिएटेड सी इज नॉट, राइट, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, तो उसमें पल्सिटिला, नेट्रोम्यूर, ये मेडिसिन आ रही है सर। राइट। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे इस केस में ये है कि इतना अब्यूज हो रही है, ये इतनी वॉलेंटली तरीके से वो हस्बैंड इसको बच्चों के आगे मारता है, और मायके से भी इसको कोई कॉपरेट नहीं है, और फिर भी यहाँ पे रह रही है, सब मैनेज कर रही है। तो एक फीलिंग मुझे एस्क्रीमेंटम कैन का भी लग रहा है इसमें, राइट, इतना ओके मैम। डोमिनेशन, इतना अब्यूज। ओके, थैंक यू मैम। हेलो। या, गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मैंने लिया एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज बीइंग मैरिज इन, और उसको वो भी लगता है कि उसके मायके से भी उसको निग्लेक्ट किया जा रहा है, कोई आता ही नहीं है, पूछने के लिए भी नहीं आता है, इसलिए वो लाइक बोलना भी छोड़ दिया है उसने। तो डेल्यूजन निग्लेक्टेड। लेकिन ये वापस हस्बैंड को रिवोल्ट भी करती है ना, इसलिए मैंने डिफाइंट लिया। उसको ये लगता है राइट, कि उसका हस्बैंड कुछ भी अच्छा किया तो भी उसको अप्रिशिएट नहीं करता है, या फिर उसका कंपनी भी अप्रिशिएट नहीं करता है, वो अपना अपना जीते रहता है। इसलिए मैंने डेल्यूजन अप्रिशिएटेड शी इज नॉट, और डिस्पेयर एग्जिस्टेंस अबाउट हर मिजरेबल। राइट, मेरा सीपिया कार्सिनोसिन नेट्रम्यूर ऐसे आ रहा है सर। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो। या, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर ये थोड़ा नाजा का फील आ रहा है। हम्म, इट हम्म, मीन्स अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग मैरिज इन एंड हम्म, निग्लेक्टेड, और जो ये सहन कर रही है, उसे सिचुएशन सब पता है क्या चल रही है, मैं क्या कर रही हूँ। तो हम्म, सर थोड़ा नाजा नाजा जैसे था। और अगर वो रिवोल्ट करती है, मतलब हस्बैंड को बीच बीच में, इफ शी इज बीइंग डिफाइंट एंड उसे भी झगड़ा करती है, बोल के दिखाती है, तो सर डैम्प एनवायरनमेंट में जो एक डलका का फील आता है, इफ चीज ज्यादा झगड़ा कर सकती है, तो सर वो डलका भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा राइट, नाजा नाजा का फील आ रहा है। थैंक राइट, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, तो आगे बढ़े सर। Yes, sir. Yes, Dilip bhai, go या, ahead. हाँ देखो, पहले मैंने भी सीपिया दिया था, सेकंड मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन था इग्निसिया था, थर्ड था कार्सिनोसिन, लेकिन ये तीनों काम नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि ये पूरे केस में देखो, केस में मतलब एक तो टोटल हम लोग जो बोलते हैं ना पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, जो राउंड अबाउट क्या सोचने का, कि एकदम प्रोमिनेंट क्या है केस में, जैसा ही अविनाश सर ने बताया कि अब्यूज बीइंग फिजिकली, लेकिन उसमें सिंगल मेडिसिन है। अभी सिंगल मेडिसिन है, इसके लिए मैं कंफ्यूज था कि ये रूब्रिक लेना है कि नहीं लेना। तो जो सिंगल मेडिसिन वाला रूब्रिक है वो मैं लास्ट में सोचना चाहिए, पहले देखने का कि और दूसरे रूब्रिक से या दूसरी अंडरस्टैंडिंग से मेडिसिन कंफर्म होती कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें ये जो रूब्रिक थे वो हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो एब्यूज था, एब्यूज वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट, कि इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, इसको डिनाई नहीं कर सकते। इट दिस वाज द कंफर्म रूब्रिक, डिल्यूजन अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग। उसके बाद ही उसका तकलीफ चालू हुआ, शादी के पहले उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था।
और एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज्ड आफ्टर बीइंग इन मैरिज। दिस वाज माय फर्स्ट रूब्रिक। ये रूब्रिक मैंने सीपीएम में भी लिया था, फिर कार्सिनोसिन में भी लिया था, और थोड़े रिबेल करती थी, मारती थी, और हस्बैंड के साथ में चिल्ला के बोलती थी। तो यहाँ से ही मेरे माइंड में सीपिया, कार्सिनोसिन ये सब आया था। ठीक है, फिर भी ये रूब्रिक मैंने नहीं छोड़ा। सेकेंड रूब्रिक मैंने लिया था कि देखो इग्नेशिया है, स्टेफी, ये सब क्या होता है, थोड़ा माइल्डनेस है, माइल्डनेस बेयर द सफरिंग, ये सोच के मैंने इग्नेशिया दिया था, बट शी वॉज नॉट माइल्ड। अगर फिर मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि दिस वाज अ फेलियर केस और 3 मेडिसिन ले चुका था। 3 मेडिसिन के बाद फेलियर बोला तो बहुत बड़ा टेंशन होता है, बहुत फिक्र हो जाती है कि अभी क्या करने का आगे। तो इग्नेशिया स्टेफी के जैसा ये कोवाडाइस के चुप बैठने वाली मेडिसिन नहीं था, माइल्ड मेडिसिन उतनी नहीं थी। ये सामने झगड़ा भी करती थी, और वो झगड़े से मतलब बाहर आवाज भी ये सब आती थी। तो यहाँ पे मैंने रूब्रिक सोचा बार्किंग। ठीक है, तो अगर देखो ये सिर्फ 2 रूब्रिक मिलाएंगे ना, एब्यूज्ड आफ्टर बीइंग मैरिज वो तो कंफर्म था, शुरू से चला आ रहा था, और बार्किंग, अगर ये 2 लेंगे तो हमारे पास हायोस, लाइसिन, पल्स और स्ट्रामोनियम, इतनी 4 ही मेडिसिन बचती थी। अभी 4 मेडिसिन में हमने को डीडी करने था। और डीडी करना तो कैसा करना, हमें जो नॉलेज है, जो पता है, उसके उधर से डीडी करने का कुछ मीनिंग नहीं है। केस में क्या है, जो केस है उधर से ही हम डीडी करेंगे तो राइट मेडिसिन तक पहुंच पाएंगे। तो ये रूब्रिक मेरे माइंड में था, लेकिन पहले मैंने कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि ये सिंगल मेडिसिन रूब्रिक है। ये बोलते हैं ना, मारपीट तो ज्यादा करके होती है, बच्चे लोग देखकर भाग जाते हैं, मतलब क्या लेवल पे मारपीट होती रहेगी सोचो। हुआ तो छोटा मोटा नहीं होता, बहुत मारते हैं। झगड़ा होता था तो पाँव पकड़ के खींच लेते थे, सर पे लगा था। मतलब उसका सिर्फ फिजिकल एब्यूज नहीं था, फिजिकल, मेंटल, ये सब एब्यूज था उसका। तो ये रूब्रिक भी माइंड में था, लेकिन इनिशियली ये रूब्रिक मैंने नहीं लिया था। उसके अलावा देखो तो ये रूब्रिक भी माइंड में आता था कि शुरू से तकलीफ उठाई, लेकिन बोलूं तो किसको बोलूं, मतलब ये इतना सहन करती थी। तो दिस वॉज द टॉर्मेंटेड फीलिंग, इसको लेकर मारतोड़ होता है, सही बोले तो बहुत तकलीफ उठाई। दिस फीलिंग वॉज द टॉर्मेंटेड फीलिंग। सो डेल्यूजन टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंट मीन्स क्या कि सिवियर फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग टू अफ्लिक्ट विद द ग्रेट बॉडीली और मेंटल सफरिंग, मतलब बहुत सहन करना। हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, बहुत यातना सहन करी, बहुत कष्ट सहन करा, दिस वॉज द टॉर्मेंट, इट वॉज अ टॉर्मेंटेड फीलिंग, डेल्यूजन टॉर्मेंटेड। और ये कैसी यातना भुगत रही थी, ऐसी यातना भुगत रही थी जैसे ये नर्क में है, अपने घर में नहीं है, ये नर्क में है। डेल्यूजन हेल सफर्स द टॉर्मेंट्स ऑफ द हेल विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन, वो किसको बोल भी नहीं सकती थी, किसको समझा भी नहीं सकती थी कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही, मेरे ऊपर क्या बीत रही है। ठीक है, और हमें फीलिंग क्या आती है कि ऐसा, ये भी सामने रिवोल्ट करती थी, ये भी सामने झगड़ा करती थी। तो दिस वॉज, ऐसा लगता है कि 2 कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, जो भौ 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 करते हैं ना, वैसा है डेल्यूजन डॉग्स। डेल्यूजन डॉग्स, ही इज अ डॉग ग्राउल्स एंड बार्क्स। फिर देखेगा तो सी वॉज बीइंग बिटन इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के सामने उसका हस्बैंड उसको मारता था। तो उस माइंड में क्या फीलिंग आएगी, इट एक ह्यूमिलेटेड फीलिंग आएगी ना, एक इंसल्टेड फीलिंग आएगी। सी वॉज बीइंग इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन एंड शी वॉज बीइंग मॉर्टिफाइड, सो एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। फिर बोलते घर पे बोल के क्या करेंगे, अभी तो 22 साल हो गए, और 22 साल में उसके पेरेंट्स देखो एक भी बार उसके घर पे आए नहीं उसको समझाने के लिए कि भाई हमारी बेटी को क्यों मारते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, एक भी बार नहीं आए, 22 ईयर्स तो बोला बहुत लॉन्ग पीरियड हो जाता है ना। अपने अपने में सब लोग उलझे हैं, हमारे पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। तो ये पेरेंट्स को जाके बोलती थी, दिस वॉज हर श्रीकिंग, और बाद में थक गई थी। तो ये थक गई थी, वहां से मेरे माइंड में आया था डिसकंसेंटेड, और इसके लिए मैंने उसको इग्नेशिया दिया था, बट इग्नेशिया फेल। तो ये दूसरे रूब्रिक भी हम लोग सोच सकते हैं, पेशेंट का एक से पर हम लोग एक ही रूब्रिक पे फिक्स हो जाते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी सोचना बनता है कि इफ ये फेल होएगा तो ये रूब्रिक भी आ सकता है, ये अंडरस्टैंडिंग भी आ सकता है, लाइक दैट वी हैव टू गो ऑन थिंकिंग। तो यहाँ पे मैंने सोचा था डिस्पेयर, श्रीक्स ऑफ डिस्पेयर, पैरोक्सिस्मल श्रीक्स ऑफ डिस्पेयर, मतलब घड़ी घड़ी ये जाके बोलती थी लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था। फिर डेल्यूजन नथिंग, ही कुड डू नथिंग, वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी, कुछ कर नहीं, तो हेल्पलेस स्टेट जो बोलते हैं ना, वैसा टाइप का था डेल्यूजन नथिंग, ही कुड डू नथिंग।
और इतना एब्यूज होने के बाद में भी वो उसके साथ में क्यों रहती थी? क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं थी और उसके माँ बाप भी उसको बुलाते नहीं थे और उनको बोल के भी कुछ फायदा नहीं था। तो जैसा ये अविनाश सर ने एक बताया कि सी वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिम। और अगर कोई रिलेटिव पूछे भी, ये रूब्रिक इसमें भले नहीं लगे लेकिन ये रूब्रिक भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर बहुत टाइम हम लोग लेडी को देखते हैं कि अब्यूज होती है, उसके बावजूद भी अगर कोई रिलेटिव पूछे तो कैसे बोला नहीं ठीक है अच्छा है। ये कभी उसको बोल नहीं सकते कि भाई ये लोग ये मेरे को मारते हैं, मेरे को इतना अब्यूज करते हैं, मेरे को इतना घर में परेशानी है। ठीक है। तो ये रूब्रिक हम लोग लगा सकते हैं डेल्यूजन लायर, डिनाई ऑब्स्टिनेटली दैट दे हैव बीन बिटन। मतलब ये बोलती नहीं कि मुझे घर पे मार पड़ती है, मेरे को इतना अब्यूज होते हैं, लेकिन किसको बोलती नहीं है बार। और बार दिखाई थी नहीं सब अच्छा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ हेल्पलेसनेस स्टेट, हेल्पलेसनेस फीलिंग। ठीक है, ये सब रूब्रिक समझ में आया? हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, अभी देखो आगे अगर रिट्रो में सोचे हम लोग, रिट्रो में अगर सोचे तो बिफोर मैरिज उसकी हालत कैसी थी? बिफोर मैरिज सी वॉज एंजॉइंग, जो बोलते हैं ना कि डेल्यूजन बर्ड सी इज अ बर्ड्स, डेल्यूजन बर्ड सी इज अ बर्ड चिरपिंग एंड ट्विटरिंग रन्स अबाउट एंड अंटिल सी फेंट्स। मतलब इतना एंजॉय करती है कि एंजॉय कर करके थक जाती है, फेंट हो जाती, गिर जाती, जब तक उस एंजॉय करती है। और कोई भी लेडी क्या सोचती है, मेरी शादी होगी, हस्बैंड के लिए बच्चों के लिए मैं अच्छा अच्छा खाना पकाऊंगी, उन लोग मुझे अच्छी तरह से रखेंगे, ये सब एक्सपेक्टेशन रहती है। जैसा ये भी बोलती है कि किधर बाहर लेके जाना नहीं, अकेले जाते हैं दोस्तों के साथ में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पूरा रिवर्स हो गया, उसकी लाइफ में पूरा सब गलत हो रहा है। तो दिस वॉज द डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड। ये पूरा सब रेट्रो रूबिक्स था, डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड, यस। देन शुरू से तकलीफ उठाई, लेकिन बोलूं तो किसको बोलूं, इसको लेकर मारतोड़ होता है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रही थी ना। तो ये रूब्रिक हम लोग सोच सकते हैं, डेल्यूजन माउथ ओपन कैन नॉट, लोअर जो स्टिफ एंड पेनफुल। जैसा लोअर जो उसका स्टिफ हो गया, जो हम लोग बोलते हैं ना टिटेनस में जो होता है लॉक जो, वैसा उसका जो एकदम लॉक हो जाता है, लॉक जो बोलते हैं वैसा। एंड शी कुड नॉट टेल एनीथिंग टू एनीबडी। उसने माँ बाप से मदद की भीख भी मांगी थी कि मुझे ऐसी तकलीफ है ये करो, लेकिन माँ बाप ने हेल्प नहीं किया। तो ये जो मदद की भीख मांगी थी वो क्या था? दिस इज बैगिंग, बैगिंग एंड ट्रीटिंग, प्रे फॉर हिम, टू प्रे फॉर हिम एंड नॉट टू लिव हिम अलोन। मतलब मुझे अकेला मत छोड़ो और मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं ये सब में से बाहर निकल जाऊं। ठीक है। और ये भी डर रहता था, देखो कभी भी वो आएगा हस्बैंड, सुबह में जाएगा, रात में लेट आएगा, खाना पीना खा के सो जाएगा, लेकिन कभी भी आएगा और मारेगा उसको। तो मन में एक डर रहता था कि कभी भी ये मेरे को मार पड़ेगी। सो डेल्यूजन अटैक्ट इज गोइंग टू बी अटैक्ट, डेल्यूजन अटैक्ट इज गोइंग टू बी डिफेंड्स हिमसेल्फ अगेंस्ट अटैक्स एंड इंसल्ट्स। मतलब ये भी थोड़ी रेडी रहती थी झगड़ा करने के लिए, बार्किंग करने के लिए। तो ये रूब्रिक हम लोग सोच सकते हैं, डिफेंड्स हिमसेल्फ अगेंस्ट अटैक्स एंड इंसल्ट्स। ठीक है। तो शंकरन सर ने देखो इसके लिए क्या कहा है कि द मेन फीलिंग ऑफ लाइसिनम इज हैविंग सफर्ड रॉन्ग, बीइंग टॉर्मेंटेड स्पेशली बाय वन whom ही हैज सर्व्ड। मतलब जिसको ये सर्व कर रही है उससे ही वो सफर हो रही है, उससे ही टॉर्मेंट हो रही है। हैज बीन फेथफुल टू एंड इज डिपेंडेंट ऑन, जिसके ऊपर डिपेंड है, जिसके ऊपर फेथफुल है उससे ही वो टॉर्मेंट हो रही है। थस क्रिएटिंग एन इंटेंस फीलिंग ऑफ एंगर एंड रेज। इसके लिए उसको मतलब गुस्सा ज्यादा आता है। इन विच द पर्सन कैन बाइट, स्ट्राइक एंड इवन वायलेंटली म्यूटिलेट। मतलब सामने वाले को मार सकता है, उसका मर्डर भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है अगर ज्यादा एंगर में गया तो। ऑफन दिस रेज इज फॉलोड बाय अ रिपेंटेंस। मेनी टाइम्स उसको पछतावा भी होता है कि मेरे को नहीं करना। क्यों पछतावा होता है? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अल्टीमेटली तो उसके ऊपर ही डिपेंड है, उसके साथ में ही मेरे को रहना है, नहीं तो मेरे को निकाल देंगे। तो इसके लिए बाद में वो रिपेंट कर देती है। एज प्रोफाउंड एज द रेज वॉज वायलेंट, जितना वायलेंट रेज होता है उतना ही वो फिर रिपेंट कर देती है।
और इट में भी अदर वे राउंड कि अगर वो रेज मतलब गुस्सा बाहर नहीं निकाल सकती है, जो हम लोग बोलते हैं एंगर सप्रेस, तो वो क्या करती है, अपने आप को भी मारती है। इट कैन लीड टू इम्पल्स टू स्टेब हिमसेल्फ। ठीक है, ये समझ में आया? तो दूसरा केस करेंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? यस सर। देखो, मैं किधर गलत जा रहा था ये आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो फ्यूचर में क्या हम लोग ये मेडिसिन इजीली पकड़ पाए और दूसरे मेडिसिन से भी हम लोग ये डिफ्रेंशिएट कर सके। ठीक है। और एक मेरे पास ऐसी पेशेंट थी, सी वॉज अराउंड 28-30 ईयर्स ओल्ड, और कुछ 5-6 साल से मैरिड हुआ था, 3-4 साल का उसका बच्चा भी था। उसका भी सिमिलर इश्यू था। ये जो मैं बोलता हूँ ना, जो रूब्रिक है अब्यूज बीइंग फिजिकली, वो हमें कितना मिसलीड कर सकता है, ये केस से मैं बताता हूँ। ये केस में भी, ये सेकंड केस में भी ऐसा ही था। पेशेंट मतलब पेशेंट को, उसको मैं पूछा उसको तकलीफ क्या थी, कि उसको मतलब चेस्ट पेन हो रहा था, थोड़ा हाइपरटेंशन था। तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा तो ईसीजी एबनॉर्मल था, उसको बोला था कि एंजियोग्राफी वगैरह सब करना पड़ेगा तेरे को। और फिर लिपिड प्रोफाइल वगैरह कराया, T3 T4 TSH ये सब कराया। तो लिपिड वेर ग्रोसली एबनॉर्मल, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है वो कुछ 250 के रेंज में था, ट्राइग्लिसराइड भी कुछ बढ़ा हुआ था, और TSH वॉज इन द रेंज ऑफ अराउंड कुछ 9 और 10 के रेंज में था। बट एक ही पॉइंट प्लस था कि सी हैड नॉट स्टार्टेड विथ एनी ट्रीटमेंट, सो इट वाज एकदम वर्जिन केस, जो फ्रेश केस हम लोग बोलते हैं ना, जब भी मेरे पास आई थी। तो सेम इश्यू था उसका भी, हस्बैंड उसको मारते थे, मारतोड़ करते थे, और कोई बचाने वाला इसका नहीं था। उसके पेरेंट्स जो है मुल्क में रहते थे। लेकिन यहाँ पे उसका अडेप्टेशन क्या था, देखो। उसको मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा फिक्र क्या होती है आपको, हस्बैंड इतना मारते तो आप किसको कुछ बोलते नहीं? तो बोले नहीं, मेरे को सबसे ज्यादा फिक्र होने मेरे बच्चे की होती है। अगर मैं नहीं रहूंगी, समझो मैं तो मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी, फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? तो इसके लिए मैं उसका मार सहन करते रहती हूँ बच्चे के लिए। ठीक है। और इसके लिए मैं क्या करती हूँ, हस्बैंड जो बोले वैसा मैं फॉलो करती हूँ। वो बोले दिन तो दिन, वो बोले रात तो रात। उसका जो काम है, मतलब मेरे को काम बोलने से पहले ही मैं उसका काम कर देती हूँ, कि वो मेरे पर गुस्सा ना करे और खुश रहे। तो उससे क्या होगा, घर में माहौल अच्छा बना रहेगा, और मेरे को मार भी नहीं पड़ेगी। मतलब हस्बैंड को इतना वो प्लीज कर रही थी। तो कार्सिनोसिन ये स्टेज में जाता है कि प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स, और फियर ऑफ पनिशमेंट, जो देखो यहाँ पे मिसिंग था ये केस में। तो यहाँ से कार्सिनोसिन और ये टोटली लाइसिन जो है ना, टोटली अलग हो जाती है। ये प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज, और बहुत सारे रूब्रिक से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट ये केस मेरे पास था, इसके लिए मैं सोचा ये शेयर करने के लिए। ठीक है। और और भी देखो, एक दो केस स्मॉल स्मॉल नरेट करता हूँ। एक लेडी थी, सी वॉज अराउंड 40-45, उसको फेस पे बहुत सारे इरप्शंस निकलते थे, जो हम लोग पिंपल्स टाइप बोलते हैं ना, वैसा टाइप का इरप्शन था, चेस्ट पे, बैक पे, इस सब जगह पे। तो हिस्ट्री में मैंने पूछा, तो बोला कि उसका हस्बैंड जो है बहुत साल पहले उसको छोड़ के चला गया, दूसरा कोई लेडी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा। तो मैंने पूछा कि फिर आपने उसको भी 3 बच्चे थे, तो मैं बोला आपने कैसा बड़ा किया और कैसा एजुकेशन दिया, ये सब। तो जैसा ही हस्बैंड ने छोड़ा, थोड़ा टाइम हो गया, वो रोई धोई, उसके बाद में उसने क्या किया, किधर भी एक बड़ा सेठ है, उसको लकीली अच्छा कोई बड़ा सेठ मिला, उसके घर पे काम करती थी। तो बोला अभी मेरा पगार पानी भी अच्छा है, और उन लोग भी मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मेरे को एक फैमिली मेंबर के जैसा रखते हैं। तो मैंने बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई, अपना घर भी खरीदा लोन पे, सब करी। तो मैंने पूछा कि आपने फिर आप माँ बाप के पास क्यों नहीं गए, क्यों उनसे कुछ मदद नहीं मांगी? तो ये लेडी क्या बोलती है कि नहीं, मैं उनसे मदद क्यों मांगू, माँ बाप से मदद क्यों मांगू? उन्होंने तो मेरे को बड़ा किया, पाला पोसा, शादी करके दिया, उससे ज्यादा उन लोग क्या कर सकते हैं? और मेरा जब भी हाथ पैर चलता है, तो मैं उनके पास जाके क्यों भीख मांगू? और अगर कोई उसको बोलते भी थे कि भाई तेरे को कुछ तकलीफ है, हम लोग कुछ मदद करें, मतलब उसके ऊपर अगर कुछ दया जताते थे ना, तो भी उसको गुस्सा आता था। तो ये नेटरम यू रिलेटेड थी, सी वॉज सो मच डिग्निफाइड। उसको ये डर लगता था कि भाई मेरे मेरे बच्चे लोग को कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए कि भाई उसका बाप नहीं है, और माँ ने उसको अच्छी तरह से नहीं रखा। सो यहाँ पे बहुत सारे रूब्रिक आ सकते थे, देखो, फियर ऑफ बीइंग पिटीड, और फियर ऑफ बीइंग हार्मोनी डिजायर, और delusion pitied on account of his misfortune,
pitied believes that he is weeping, जब भी अगर कोई उसको लगता है कि कोई उसके ऊपर दया जताता है तो उसको रोना आ जाता था। सो ये नेट्रम्यू था। सिमिलरली एक केस अभी चल रहा है क्रॉनिक अर्टिकेरिया का मेरे पास। उसका भी हस्बैंड उसको छोड़ दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो ये पेरेंट के घर पे आ गई। पेरेंट के घर पे आ गई तो उसके बाद में ये पढ़ी लिखी थी तो अभी जॉब कर रही है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उसका भी कुछ 3-4 साल का बच्चा है, तो अभी उसको जो प्री स्कूल में वगैरह डालते हैं वहां पे डाली। प्लस ये इसका मेन बोलना कैसा था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। ये दे बिलोंग टू क्या बोलते हैं कि आदिवासी एरिया में, जो ट्राइबल एरिया है ना, वहाँ पे उन लोग रहते थे। वैसा गांव में उन लोग रहते थे। तो बोलती है कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, हस्बैंड पढ़ा लिखे नहीं है, और मेरी सास और फिर जो मदर इन लोग वो भी उसको अब्यूज करते थे। तो उन लोग की सोच इतनी हल्की थी, और उतना उतना लो कैटेगरी के उन लोग सोच सकते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि उन लोग इतने नीचे लेवल के रहेंगे। तो देखो ये क्लियर कट रूब्रिक था कि डेल्यूजन ग्रेट सीज, और जो है ना डेल्यूजन ह्यूमिलिटी एंड लोनेस ऑफ अदर वाइल सी इज ग्रेट। और इतनी डिग्निफाइड थी, इसके लिए देखो पेरेंट के घर पे भी आई, जॉब करना स्टार्ट किया और अपना बच्चे को खुद पालने लगी। तो ये उसको स्टेफी दिया था, और स्टेफी से वो ठीक हुआ, अभी भी चल रही है वो। स्टेफी से अभी काफी ठीक है। तो आज का टॉपिक देखो कि वुमन का एडेप्टेशन कैसा है, वो एडेप्टेशन के हिसाब से वी कैन गो फॉर द रेमेडी। तो ये थोड़ा मेरा थॉट प्रोसेस बोलता हूँ रिगार्डिंग दिस टॉपिक। एवरी वुमन passes through certain stages in her life. When she is born, she is a daughter and sister in her house. तो यहाँ पे उसकी वांट क्या रहती है कि सी वांट्स गुड एजुकेशन, फ्रीडम टू डिसाइड हर करियर, हर जॉब। मतलब यहाँ उसको आज के ज़माने के हिसाब से थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए कि अपने आप क्या डिसाइड करना, क्या करियर लेना, क्या जॉब लेना, ये उसको उसका वांट रहता है। आफ्टर दैट हर एजुकेशन एंड जॉब सी गेट्स मैरिड। तो नाउ सी प्लेज अ रोल ऑफ अ वाइफ, ऑफ अ रोल ऑफ डॉटर इन लॉ। यहाँ पे वो पूरा टोटली चेंज मतलब एटमोसफियर में आ जाती है। देन सी बिकम्स अ मदर। हर यहाँ पे मदर बनने के बाद में मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, हर होल प्रायोरिटी शिफ्ट्स टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। जैसा ये कार्सिनोसिन केस में हमने सोचा कि उसको अपना डर नहीं रहता है, उसको फिक्र रहती है कि बच्चा मेरा क्या करेगा, मैं जाऊंगी तो फिर सी इज मोर वरीड अबाउट हर चिल्ड्रन देन हर सेल्फ। यहाँ पे देखो हमारे मीन्स रेपर्टरी में बहुत एक ब्यूटीफुल रूब्रिक है, मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैजरेटेड। अपना कम सोचे, बच्चे का ज्यादा सोचते। देन लास्ट सी बिकम्स अ मदर इन लॉ। लेकिन ड्यूरिंग ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ हर लाइफ अगर हम देखेंगे एज अ वुमन, तो सी फॉरगेट्स herself फॉर हर फैमिली। अपना पूरा अस्तित्व वो खो देती है। डेल्यूजन डिजोल्विंग, ये मीन्स रूब्रिक हम लोग सोच सकते हैं। सी इज डिजोल्विंग। डिजोल्विंग मतलब क्या, जैसा शक्कर जो है दूध में चाय में अगर हम लोग डालें तो शक्कर का अस्तित्व पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन जो शक्कर है ना, इट गिव्स अ गुड टेस्ट टू द टी और मिल्क वॉट एवर वी ड्रिंक। अगर उसके बिना हम लोग चाय शक्कर डाल के बिना चाय पिया तो चाय कैसा लगेगा, फीकी लगेगी। लाइक दैट सी गिव्स फ्रेग्रेंस टू द फैमिली, सी गिव्स हैप्पीनेस, सी गिव्स टेस्ट टू द फैमिली। तो जब ये इतना सब करती है तो इन रेसिप्रोकेशन सी वांट्स लव, सी वांट्स केयर, सी वांट्स रिस्पेक्ट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एंड शी वांट्स ट्रू कमिटमेंट फ्रॉम द सोसाइटी। और उनको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए कि ये लड़की है तो उसको कम पढ़ाओ, वो तो क्या बाद में शादी करके चले जाने वाली है, हमको थोड़ी काम लगने वाली है, दैट ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। प्लस सी नाउअडेज सी वांट्स बैलेंस बिटवीन द वर्क एंड द होम। मतलब जो प्रोफेशनल उसका एनवायरनमेंट है और घर का जो एनवायरनमेंट है उसमें उसको बैलेंस चाहिए। ठीक है। ग्रेटिट्यूड एवरीवन। सो ग्रेटिट्यूड लियाकत सर, मानसी मैम, एवरीवन। सर अभी आप बोलना, मेरा हो गया। सर डेलूजन थैंक यू सर। डिजॉल्विंग, सर डेलूजन डिजॉल्विंग एक्सप्लेन एक बार और कर दीजिए। हाँ, डिसॉल्विंग मतलब क्या है, देखो डिसॉल्विंग मतलब क्या, घुल जाना सर उसमें। घुल जाना। हाँ मतलब देखो अगर शक्कर डालते हैं तो बाद में हम लोग उसमें से शक्कर निकाल सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं, लेकिन टेस्ट आता है ना। यस सर। समझे मेरी बात?
टेस्ट आता है, हाँ लेकिन सर। शक्कर तो घुल गई ना, शक्कर का अस्तित्व पूरा खत्म हो गया। लेकिन शक्कर जो है वो चाय को टेस्ट देके गई ना, दैट इज डिजोल्विंग। जी। तो जब भी इतना डिजोल्व हो जाएगी तो सामने एटलीस्ट सिवियर डिजायर सम रिस्पेक्ट फॉर हर ना। समझ में आया डिजोल्विंग? यस सर। Yes, sir. Yes, वो sir. आज एक के और रेमेडी का नहीं है, लेकिन हेलो, जिन्होंने ये सवाल पूछा है ना, दैट इज नॉट रिलेटेड टू टुडेज केस। हाँ, सर टुडेस केस, टू हाँ, एक्सप्लेन। हाँ ये सर, हम लोग, हाँ एक और रूब्रिक है सर, जो आपने बार्किंग रूब्रिक लिए हैं वो थोड़ा सा बता दीजिए। और हाँ, बार्किंग मतलब क्या है? सर वो लड़ाई झगड़ा करना, बहस करना, हाँ भौंकना जो है ना। हाँ, तो ये मैं कहाँ से, देखो मेरी मिस्टेक हो रही थी, मैं इसको माइल्डनेस समझ रहा था, लेकिन ये माइल्डनेस नहीं थी, ये भी हस्बैंड के साथ झगड़ा करती थी, मारती थी कभी कभार, मतलब रिवोल्ट करती थी, और ज्यादा तौर पे रिवोल्ट करती थी ये। तो इसके लिए मैंने बार्किंग रूब्रिक सोचा था जब। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बोलिए आप। देखो, दिलीप भाई ने जो रूब्रिक बताया ना, डिजॉल्विंग, बहुत प्यारा रूब्रिक है। मैं आई शेयर द स्क्रीन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रूब्रिक। मैं इंशाल्लाह बाद में एक्सप्लेन करूंगा ये, ठीक है। बट इसके अंदर इस पर से मैंने हमेबलिस दिया था भाई, या कि मैं सर इतनी घुल गई हूँ, लेकिन इन लोगों को किसी को मेरी कदर नहीं है। बस ये चीज पर से आई हैड गिवन हमेबलिस। सर मैं अपना अस्तित्व ही नहीं रखा है घर में। भूल गई, ये शब्द नहीं बोला था उसने, बट मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है सर इस घर में। मैंने अपने आप को ये घर के लिए पूरा समर्पित कर दिया, और किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई है। तो आई हैव टेकन डिलीजन डिसॉल्विंग एंड एलिमेंट्स फ्रॉम नॉट बीइंग एप्रिशिएटेड। देखो, इफ यू टेक दिस टू रूब्रिक, योर एमएमएल कम्स, है ना। तो ये है, ये रूब्रिक हम बहुत यूज करते हैं, मतलब आई हैव यूज्ड इवन इन ऑलिव सैक केसेस। तो रिगार्डिंग टुडेज लाइसिन केस, जो सबको कंफ्यूजन था ना कि ये यर्निंग फॉर लव है क्या, है ना। मेनी ऑफ द पीपल मस्ट हैव थॉट कि इसको प्यार चाहिए, रोमांस चाहिए, है ना। क्या है वो? लव डिजायर्स रोमांटिक, क्या है उसके अंदर? लव रोमांटिक डिजायर्स, है ना। तो जर्मेनियम मेटालिकम आता है। दूसरा, किसी के मन में एक ख्याल आएगा, लव यर्निंग फॉर लव ना, इसको क्या चाहिए था? प्यार चाहिए था, है ना। तो ऑलिव सैक भी एक बहुत मन में आता है ना। लेकिन व्हाट वाज देयर इन टुडेज केस, एक एक देखो कि ये बेसिकली जो बहुत अच्छा समझाया है दिलीप भाई ने, कि बेसिकली लाइसिनम फील्स दैट शी इज अ बर्ड। ओके, ये बहुत अच्छा रूब्रिक है, डिलीजन सीज बर्ड्स। इसको मतलब लड़कियों का अपन क्या, पंछी बोलते हैं ना। हेलो, वी कॉल देम बर्ड्स ओनली, लिटिल बर्ड्स। मैं आई यूज्ड टू कॉल माय डॉटर बर्ड, लिटिल बर्ड। even in the class when I go, when I'm teaching in the college, I call them birds. Because why the girls are called birds? बिकॉज उसको उड़ान भरनी होती है इतना, सदियों से। किसी भी सोसाइटी में आप चले जाओ, एनी, वेदर इट इज वेस्टर्न, ईस्टर्न, यूरोप, व्हाटएवर, यूरोपियन हो, एशियन हो, है ना, ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स में आप जाओगे, तो गर्ल्स आर बीइंग dominated, suppressed, oppressed, always being used as the object of pleasure and domesticated. Okay, तो दे आर बीन एक्सपेक्टेड, वही है, जरूरत है, जरूरत है ना। श्रीमती कलावती सेवा करे जो पति की, वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अगर उनको सचमुच में जमाने के साथ अगर आना है, या फिर सो कॉल्ड मर्दों के साथ compete करना है, तो एक औरत को छलांग ही मारनी पड़ती है। एक दूसरी बात ये होता है कि बच्चियों को हम उड़ने देते हैं। सबसे बुरी बात क्या पता है, सोसाइटी की हिपोक्रेसी, स्पेशली इंडियन। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन, आई डोंट नो मच अबाउट वेस्टर्न इन दिस। इंडिया में क्या होता है ना, कि लड़कियों को उड़ने दिया जाता है बचपन में, एकदम पापा की परी वरी, इतना उड़ने को दिया जाता है, और बाद में सीधी उसकी डेड वेडलॉक, लगना बेड़ी, शादी की बेड़ी में उसको अटका दिया जाता है सीधे सीधे। और बर्ड्स को कहाँ बांधा जाता है? एंकल्स पे बांधा जाता है। तो उनको सीधा सीधा बांध दिया जाता है, और वहां से, इसीलिए लगनाची बेड़ी कहते हैं हम लोग, वेडलॉक कहते हैं ना हम लोग। वो होती है ना हथकड़ी, वो बांध दी जाती है उसके पैरों में, या गाय के तो गले के अंदर लटका दिया जाता है। वो मैंने, आई थिंक मैंने लिया हो, मैंने पढ़ा है वो लास्ट टाइम। तो रिगार्डिंग दैट इज वाई, ये जो लड़की अपने आप को बर्ड समझती है, या समझती थी मायके में जो थी, ठीक है,
जो भी होगा, बहुत नाज नहीं होंगे उसके, बट उसको जो कॉमन, ऐसा नहीं है नॉर्मली उसको बाबी डॉल के कपड़े पहनाए जाते हैं वगैरह वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं, मुस्लिम्स के अंदर लाचा पहनाया जाता है लड़की को, ये सब इसके अंदर लुक को रखा जाता है। तो उनके अंदर वो फैंसी होती है ना कि शादी मतलब क्या है, शादी मतलब हर लड़की के ख्वाब होते हैं, जैसे मर्दों के भी होते होंगे और लड़कियों के भी ख्वाब होते हैं। तो डिल्यूजन, इमेजिनेशन ऑफ फैंसीज वो लेकर आती है कि क्या, अगर शी इज प्रेग्नेंट विद द थॉट, शी डिजायर्स, फुल ऑफ डिजायर्स इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मतलब क्या, यू आर प्रेग्नेंट विद थॉट्स। आप अपने कुछ ख्यालों से, ख्वाबों से भी आप प्रेग्नेंट होते हैं ना। तो यू गेट मैरिड विद दिस, देखो, सिंग डिजायर टू, है ना, कि क्या गाना चले ना। सिंग मतलब क्या है कि आपको गाने दिया जाए। ट्रैवल डिजायर टू, वंडर डिजायर टू, मतलब भाई मेरे को घूमने लेके चल बाइक पे कहीं ना कहीं, मेरे को तू यार गाने दे, गुनगुनाने। सिंग मतलब क्या, गुनगुनाती है। औरतें देखो, ज्यादातर आप देखोगे कितनी औरतें गाना लगा देती है और किचन में काम करती है। कितनी औरतें हैं, आप देख लो, मेरे पास में एक झाड़ू वाली लड़की है, उसको लाइसेंस दिया था मैं, कान में लगा देती थी, मेरी जो झाड़ू पोछा करने वाला है, शी वो गुटखा डाल दे मुंह में और पोछा पोछा पोछा। आई हैड गिवन अ डलका मरा, बट लेटर आई हैड गिवन अ लाइसेंस, कि मेरे को उसके बारे में मन में कुछ नहीं लगता डॉक्टर साहब, मेरे को उसके बारे में तिरस्कार है। तो उस पर से अपने फेवरेट रेमेडी मेरा तिरस्कार है, इंडिपेंडेंट है, तो आई हैड गिवन डलका मारा टू हर। ठीक है, हेटेड फॉर हस्बैंड एंड इंडिपेंडेंट। तो बट देन लेटर आई रियलाइज कि ये गाना लगा के मुंह में गुटखा लगा के क्यों चलती है। उसका इधर टैटू था, इस तरफ यहाँ पे टैटू था। वंस आई सॉ, मैंने अरे लड़की लुकड़ी लकड़ी साइकिल पर आती है, उसकी पिंक साइकिल देख के मेरे को क्लिक हुआ कि मैंने यार ये पिंक साइकिल पहनती है, झोपड़पट्टी में रहती है, हस्बैंड मार रहा है, लव मैरिज किया है, शी इज मैरिड अ मैन फ्रॉम अदर कास्ट, शी इज कमिंग फ्रॉम सम रिमोट प्लेस ऑफ औरंगाबाद की कोई और अंदर का गांव है, उधर से आई हुई है। तो वो लेडी बर्ड, वो जब मैं साइकिल देखा, मैंने यार ये साइकिल लेडी बर्ड है। देन आई वेंट टू दिस बिग बर्ड एंड देन आई थॉट, अरे हाँ यार, इसको टॉर्मेंटेड है, मार मिल रहा है हस्बैंड का, सब मिल रहा है। देन आई गिवन अ लाइसेंस फ्रॉम दिस, कि इसने लव मैरिज इसलिए किया कि ये कुछ ख्याल लेकर आई थी, शी वॉज प्रेग्नेंट विद द थॉट्स, गुनगुना रही है, ट्रैवल डिजायर उधर से इधर आ गई कि नहीं, मैं अब एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाऊंगी। दिस इज ट्रैवल, हेलो, यू ट्रैवल फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर, शी इज माइग्रेटेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। हेलो, ये कन्वर्ट, जो कन्वर्ट होते हैं लोग, उनके लिए भी यूज कर सकते हैं ये रूब्रिक अपन, ट्रैवल डिजायर टू। आप ये रूब्रिक उनको भी यूज कर सकते हैं जिसके अंदर कन्वर्जन होता है, जो लोग प्यार में जाते हैं, उनमें भी आप ये रूब्रिक यूज कर सकते हो कि यू आर प्रेग्नेंट विद सम थॉट्स, है ना, फुल ऑफ डिजायर्स इन प्रेगनेंसी, कि यार प्यार में ये होगा, प्यार में वो होगा, ऐसी बीवी रहेंगे, ऐसा घर रहेंगे, ऐसे बच्चे रहेंगे, है ना, छोटा सा ख्वाबों का अपना घरौंदा रहेगा, है ना। वो मैं क्या हार्डकोर रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, मतलब ऑफ कोर्स आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, राइट फ्रॉम रिलीजियस एंड ऑल दैट, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, बिकॉज माय ब्रदर वाज डूइंग एमए इंग्लिश, आई हैड नथिंग जब इन अ विलेज, तो आई हैड read all Shakespeare and all when I was in school. Though I am from Marathi medium, I have read all the English books, keeping the dictionary बाजू में रख के, और मैं इंग्लिश किताबें भाई की पढ़ा। तो रोमांटिसिज्म तो मेरे मन में बहुत है। तो मैं उसके लिए, अपन क्या होता है ना, रोमांटिक, अपन लव मैरिज में अपन सीधा रोमांटिक रूबिक डालते हैं, या जो भी सेंटिमेंटल, बट डिजायर, फुल ऑफ डिजायर्स इन प्रेगनेंसी। हम लोग अटकते क्या है पता है क्या, यहाँ पर हम लोग अटकते थे एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट में, क्योंकि डिसअपॉइंट हुई है, मेरे को घूमने नहीं ले जाता, कुछ नहीं कराता। आप एक शादी में आप एक एक्सपेक्ट करके आ रहे हो कि भाई मुझे घुमाएगा फिराएगा, मेरी बात को अप्रिशिएट करेगा, वो डिसअपॉइंट हुई, वो नहीं है। इसके मन में आज भी वो है कि फुल अभी भी है कि मुझे लेकर जाए, घुमाए फिराए, पानी पूरी खिलाए, मूवी लेके जाए। दिस इज फुल ऑफ डिजायर्स इन प्रेगनेंसी। इसकी इच्छा आकांक्षाएं जो है, इसकी प्रेग्नेंट अभी भी है। आज भी अगर चाहिए हस्बैंड इसको थोड़ा प्यार से ये सब कर लेता ना, तो ये मेरे पास में एक लाइसेंस थी कि सर ये प्रेम से मेरे साथ रहता ना, मैं इसके पैर भी धो के पढ़ूं, सर आज भी इसके पैर पड़ती हूँ मैं। वही ना, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर में है ना लाइसिनम, इसके लिए 16 सोमवार करती हूँ, फिर वो व्रत भी करती हूँ, वो है ना, वो बैनियन ट्री को ये करते हैं, वो भी करती है। मेरे यार इतना मारता है देखो, कूट कूट कूट, तो मैं ऐसा बोला था, बोला कूट 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 तो करिए बेने से, तो ये कर दे, लिटरली दिस इज व्हाट आई टू, लाइक मराठी स्पीकिंग, तो ऐसे बोला ये कूट कूट से मारता है, तो नहीं सर क्या करूं।
तो इसी पर से एक होम्योपैथ ने उसको इग्नेशिया दिया था कि पापा डिलीजन मैरिड, बट व्हेन शी केम टू मी आई रियलाइज कि नहीं यार, ये रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है, और ये नहीं सर, ये भी फुल ऑफ डिजायर्स इन प्रेगनेंसी है ना, कि मैं पत्नी हूँ, मैं तिलक लगाऊंगी, मैं साड़ी पहनूंगी, मैं 16 सोमवार करूंगी, या मैं उसका व्रत रखूंगी, ये क्या है? इसके डिजायर्स है ये, कि मुझे पतिव्रता कहलाना है, ये इसके डिजायर है, और ये इसी थॉट से प्रेग्नेंट है। ये रूब्रिक बहुत काम का है, डिजायर, फुल ऑफ डिजायर्स इन प्रेगनेंसी। आई यूज दिस रूब्रिक वेरी ऑफन। और अब क्या हो रहा है ना, कि ये निवाला देखो, इमेजिनेशन स्वॉलो शी के नॉट, ये निवाला, ये शादी का जो इसको रियल जिंदगी ने जो इसको परोसा है, ये निगल नहीं पा रही है। जो आस्तिक मतलब जो रियलिस्टिक जो है, सच्चाई जो है, उसने ये लेडी को जो दिया है, निवाला परोसा है, दिस मॉर्सल शी कैन नॉट सॉलो, ये उसको निगले नहीं जा रहा है। क्या है? डिल्यूजन, इमेजिनेशन वॉल्स, ये जो चार दीवारी में आ गई है ना अभी ये हस्बैंड की, कि इसके अंदर इससे उसको निकला नहीं जा रहा है, ये चार दीवारी में है ना। डिल्यूजन, इमेजिनेशन वॉल्स मतलब दीवारें खड़ी कर गई है अभी उसको, चार दीवारी वॉट एवर, ये दीवारों के अंदर ये निकल नहीं पा रही है। तो हम लोग कभी कभी लिबर्टिनिज्म में फंस जाते हैं। तो ये थोड़ा सा सिमिलर लिब्रिक जो है ना, रूब्रिक्स है, इसको थोड़ा सा स्टडी करने का। तुरंत एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम यर्निंग फॉर लव, प्यार मांगता है, ये वो, इसमें मत जाओ तुरंत। थोड़ा सा रूब्रिक, थोड़ी गहराई रूब्रिक भी आप लोग यूज करना शुरू करो। नहीं तो फिर हम लोग क्या सेपिया में ही अटके रहेंगे अभी भी, कि यार हस्बैंड मार रहा है, इसको घर में पोछा लगा रही है, दे दो सेपिया, बस हम लोग उसी से फिर निकल नहीं पाते हैं। दिस रूब्रिक प्लीज टेक दिस, आज का ये इसका कि फुल ऑफ डिजायर इन प्रेगनेंसी। तो व्हाट वुमन वांट्स इज प्यार, शी वांट्स टू सिंग, शी वांट्स टू ट्रैवल, उसको अपनी अपनी धुन में गाना गाना है। हर एक की एक धुन होती है ना। आप अगर चेक, कौन सी पिक्चर थी यार, वो मुझे याद नहीं आ रही है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो है ना, वो विलन बोलता है कि हर किसी का एक सिनेमा चल रहा है दिमाग के अंदर। आप देखो गैंग्स ऑफ वासेपुर के अंदर वो जो विलन है उसका नाम क्या है, मैं भूल जा रहा हूँ, वेरी गुड एक्टर, डायरेक्टर ऑल्सो। तो ही सेंस कि हर किसी का एक दिमाग में एक पिक्चर चल रहा है, हर कोई एक रोल प्ले कर रहा है, दैट इज डिल्यूजन। तिग्मांशु धूलिया। हाँ, पिग्मांशु धूलिया मेरा फेवरेट है। पिग्मांशु धूलिया, आई मेट हिम, पिग्मांशु भाई इज फैंटास्टिक मैन, फैंटास्टिक। बहुत थॉटफुल एक्टर्स है ये लोग, मतलब नवाज भाई, ये तुम्हारा वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो दूसरा क्या है, वो दूसरा लड़का मनोज मशहूर वाला। बाजपेयी और मनोज भाई तो यार वो तो ग्रेट है, वो कौन सा? त्रिपाठी। हाँ, त्रिपाठी, वो तो बाबा तो बड़े बड़े लोग। और ये वो मुस्लिम लड़का, वो नवाजुद्दीन। हाँ, नवाज नहीं, नहीं लड़का लड़का नवाज। राजकुमार राव। हाँ, वो भी, अरे राजकुमार राव फिर भी हीरो है। अरे वो इसमें वासेपुर में दूसरा कौन सा और सीरीज फेमस वही है। अरे कम ऑन यार, वो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए। कालीन भैया। हाँ, वो भी बहुत फंटास्टिक है। कालीन भैया नहीं, वो जो लड़का है उसमें, तो फंटास्टिक मिर्जापुर में एक्टर। अली फैजल। हाँ, अली फैजल मिर्जापुर अली में। हैदर, अरे ये लोग इतने, ये जितने भी दिल्ली वाले हैं ना, मतलब ये नेशनल स्कूल हमारा एनएसडी वाले जो बच्चे हैं ना, इन लोगों के इंटरव्यू आप सुना करो। ये जो गहरी बात करते हैं ना ब्रो, आप पागल हो जाओगे। मुझे लगता था कि अपन बहुत होशियार है अपने, फिर वहां पे जाके पता चलता है कि भैया एक तुम अकेले नहीं हो गालिब, और भी है दुनिया में दीवाने। समझे कि नहीं? तो आप ये सच में इन लोगों के इंटरव्यू, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, शबाना जी का इंटरव्यू आप देखिए, जावेद अख्तर साहब का इंटरव्यू आप देखिए, आप अमरीश पुरी साहब का इंटरव्यू देखिए। इन लोगों के आप इंटरव्यूज देखोगे ना, तो आप बोलोगे कि यार ये क्या पढ़ते हैं। मतलब इंसानों के फीलिंग्स का, जिंदगी का कितना गहराई से ये लोग अभ्यास करते हैं। तो आप लोग जरूर इन लोगों के इंटरव्यूज, आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर इनके इंटरव्यूज है, आप वो जरूर देखा करो। उससे आपको जीवन का बहुत अलग देखने का नजरिया मिलेगा। हम लोग की यही कोशिश होती है कि हम लोग आपको नजरिया देने की कोशिश करते हैं। रेमेडी पढ़ाने के लिए आपको 50 मिल जाएंगी, किताबें मिल जाएंगी, सब मिलेंगे। हम वी डोंट वांट टू सर्व यू फिश, वी विल टीच यू इंशाल्लाह फिशिंग, है ना। सो टुडेस केस दिलीप भाई इज वंडरफुल, फैंटास्टिक।
Because of you, I could explain this full of desires in pregnancy. Thank you very much. But And we'll thank you, again sir. call you back. We'll again call you Yes. back. And thank you for the rubric dissolving. आपने बोल दिया ना, एक ऐसा होता है ना कि इतनी केसेस है दिलीप भाई, खाली बोलते तो फिर वो निकलती इधर से टपाटप। हाँ नहीं याद आते रहते फिर। हाँ फिर याद आ जाते। मेरे 2 लाख केसेस क्रॉस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। 2 लाख होम्योपैथिक केसेस क्रॉस्ड। तो आप खाली एक ऐसा, हम लोग को ना चिमटी लिया करो ऐसा थोड़ा सा, कोई भी आ गया यस सर, तो हम शुरू हो जाते हैं फिर। हमको सीखने को बहुत मिलेगा सर ऐसा। अरे नहीं, बहुत है, अपने को बहुत सीखना है एक दूसरे के साथ दिलीप भाई। योर केस वाज वंडरफुल एंड कार्सिनोसिन तो तेरा बहुत प्यारा था माशाल्लाह से। थैंक यू डिग्निफाइड सर। कार्सिनोसिन तेरा बहुत अच्छा था माशाल्लाह। वेरी नाइस। किसी ने मेरे पे उंगली नहीं उठा, ये कार्सिनोसिन का सेंटेंस है वाला, किसी ने मुझ पर उंगली उठानी नहीं चाहिए, इतना अच्छा काम करता हूँ मैं। इसी बात पर देता हूँ। कई लोग जो मैं बोलता तो इतना मरमर काम, सर देखो हमारे ऑफिस में बहुत ऐसा है, ये लोग बहुत बेकार है, कि बोलते थे अपने को बोले पे अच्छा लगता, डिलीजन क्रिटिसाइज में देखो आप कैसे। तो कोई मुझ पर उंगली नहीं उठाए, इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। ये सेंटेंस कार्सिनोसिन का आप मार्क कर लो, लिख लो। पहले कार्सिनोसिन तो फेल होगा तो फिर दूसरी रेमेडी आप ढूंढो, भले फिर वो डिलीजियस पिन्स वगैरह, फिर वो देखो आप चुप जाती बात तो फिर आप सिलिशा वगैरह देखो, लेकिन कोई मेरे काम पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। ये बात कार्सिनोसिन की है। ये आप सेंटेंस ले लो। नेक्स्ट टॉपिक आगे, उससे थोड़ा आगे है, वो कभी बाद में इंशाल्लाह। दिलीप भाई थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सर। call you back. Please come again. So Definitely. thank you so much, Mansi, Pradita, and all the PHF team. Please go and watch us on YouTube channel, that is Ignited Minds by PHF, and still fantastic more cases to come. And again, every time I appeal, anybody wants to take lecture, please come forward, show us your case. We'll surely give you the break, and we'll surely make you famous also, inshallah. We'll put you on YouTube and yeah, मानसी कुछ बोलना है तो बोलो। नहीं सर, आपने बोल दिया सर। जस्ट टू से थैंक यू जानी सर, एंड थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक। चलिए मिलते हैं फिर। देखो एक शेर आपको बोल रहा हूँ मैं, इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि आप आओ और लेक्चर लो। ये दिन हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, तुम कहीं हम कहीं और रहेंगे, है ना। तो साथ में आओ, बैठो, मजे करो, पढ़ो, इंशाल्लाह सब मिलेंगे। हैव अ हैप्पी लर्निंग। गॉड ब्लेस। बाय। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Thank you, sir.